तिस अंतर रवै हर नामा बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुर बाणी कहे सेवक जन माने पर तक गुरु निस्तार बाणी बिरलो विचार सी जे को गुरमुख होए एह बाणी महापुरख की निज कर वासा होए राम कली महल्ला पहला सिद्ध गोष्ठ एक ओंकार सतगुर प्रसाद हाटी बाटी रहने निराले रूख बिरख उद्याने कंद मूल आहारो खाइए औदु बोल ज्ञाने तीरथ नाइय सुख फल पाइय मैल न लागे काई गोरख पूत लोहारी पा बोल जोग जुगत विद साई हाटी बाटी नींद न आवे पर कर चित न डोलाई बिन नावे मन टेक न टिकाई नानक भूख न जाई हाट पटन कर गुरु दिखाया सहज सच वपारो खंडत निंदरा अल्प आहारंग नानक तत विचारो दर्शन पेख करो जोगिंदरा मुंदरा चोली खिंथा बार अंतर एक सरेवो खट दर्शन एक पंथा इन विद मन समझाइए पुरखा
ਬਹੁੜ ਚੋਟ ਨਾ ਖਾਈਐ, ਨਾਨਕ ਬੋਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬੂਝੈ। ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਇਵ ਪਾਈਐ, ਇਨ ਬਿਦ ਮਨ ਸਮਝਾਈਐ ਪੁਰਖਾ। ਬਹੁੜ ਚੋਟ ਨਾ ਖਾਈਐ, ਨਾਨਕ ਬੋਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬੂਝੈ। ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਇਵ ਪਾਈਐ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਪਦਿਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਭਾਈ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੰਗਾ ਨਗਰ ਵਾਲੇ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਕੱਲ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸ ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੈ, ਸੰਗਰਾਂਦ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੈ, ਦੀਵਾਲੀ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੈ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਗੁਰਪੁਰਬ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੈ। ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ 12 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੈ। ਇਸ ਉਪਲਕਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਜੇਗਾ। ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਾਸ। ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਦੋਏ ਕਰ ਜੋੜ ਮੰਗੋ ਇੱਕ ਦਾਨਾ, ਸਾਹਿਬ ਤੁਠੈ ਪਾਵਾ। ਸਾਸ ਸਾਸ ਨਾਨਕ ਆਰਾਧੇ, ਆਠ ਪਹਿਰ ਗੁਣ ਗਾਵਾ। ਬਿਸਰ ਨਾਹੀ ਦਾਤਾਰ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਖੋ। ਗੁਣ ਗਾਵਾ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਨਾਨਕ ਚਾਓ ਏਹੋ। ਬਦ ਬਖਤ ਹਮ ਚੋ ਬਖੀਲ ਗਾਫਲ, ਬੇ ਨਜ਼ਰ ਬੇਬਾਕ। ਨਾਨਕ ਬਗੋਇਦ ਜਨ ਤੁਰਾਂ, ਤੇਰੇ ਚਾਕਰਾਂ ਪਾਖਾਕ। ਪਰਮ
ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਤਖਤ ਚਵਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਾਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਆਓ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿਖੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਨੇ ਬਚਨ ਵਰਤੇ, ਕਬੀਰ ਏਕ ਘੜੀ ਆਦਿ ਘੜੀ, ਆਦਿ ਹੂੰ ਤੇ ਆਦ ਭਗਤਨ ਸੇਤੀ ਗੋਸ਼ਟੇ ਜੋ ਕੀਨੋ ਸੋ ਲਾਭ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ, ਕੋਈ ਰਸਨਾ ਬਾਂਧੀ ਨਾ ਰਹੇ, ਰਲ ਮਿਲ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਮਤ ਭਰੇ ਬਚਨ ਕਹੇ। ਉਹਨਾਂ 3 ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਚਲਿਆ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੇਵਲ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਗਿਆ, ਉਥੋਂ ਦਾ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੇਖ ਕੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਆਇਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਰ ਇੱਕ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਡੂੰਗੀ ਚੁੱਭੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਹੈ। ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਖਲੋਣ ਵਾਲਾ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਗਿਆ, ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਆਕਾਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ, ਪਾਣੀ ਵੇਥਾ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਡੂੰਗੀ ਚੁੱਭੀ ਮਾਰ ਕੇ ਆਇਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਮਤੀ ਰਤਨ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਂਦੇ। ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦਾ ਜਾਏ ਤੇ ਕਹੇਗਾ ਕੇਵਲ ਉਜਾੜ ਹੈ, ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਆਕਾਰ ਵੇਖਿਆ, ਆਕਾਰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦੇ ਪਏ ਸਨ। ਪਰ ਖਨਵਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਖਨਵਾਰੇ ਜਦੋਂ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਖੋਦਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਮਤੀ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਕੱਢ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੀਸਰਾ ਬਚਨ ਵਰਤਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਆਮ ਬੰਦਾ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਕੇਵਲ ਉਜਾੜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੂਝਵਾਨ ਕੋਈ ਗਿਆਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਮਲਿਆਗਰ, ਸੌਂਦਾ, ਕਪੂਰ, ਚੰਦਨ, ਕੀਮਤੀ ਰੁੱਖ, ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਲੱਖਾਂ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 3 ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਪਹਿਲਾ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਦੁਹਰਾ ਦਿਆਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਮ ਬੰਦਾ ਕੇਵਲ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਿਨਾਰਾ ਵੇਖ ਕੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਡੂੰਗੀ ਚੁੱਭੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਜਾਚ ਹੈ, ਕੀਮਤੀ ਰਤਨ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਆਮ ਬੰਦਾ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਪਹਾੜਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਤੱਕ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਪਹਾੜ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦੇ ਸਨ, ਆਕਾਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ, ਪਰ ਖਨਵਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕੀਮਤੀ ਰਤਨ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੀਸਰਾ ਬਚਨ ਵਰਤਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਆਮ ਬੰਦਾ ਜਾਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਉਜਾੜ ਕਹਿ ਕੇ ਦੁਰਕਾਰੇਗਾ, ਪਰ ਸੂਝਵਾਨ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਕੀਮਤੀ ਰੁੱਖ, ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿੱਖਾ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿੰਨੀ ਕੋ ਕੋਈ ਡੂੰਗੀ ਚੁੱਭੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜਾਤ ਜਾਣਦਾ ਹੈ,
जिन्ना को कोई बाणी नाल प्यार, इनू अकीदा प्रेम नाल पढ़दा है, कह लगे तू भरोसा रख के तुरी, जो कुछ बाणी विचों लभना चाहुंदा है तेनू प्राप्ति हो जाएगी। भाई साहब जी ने शब्द वरते, कह लगे जैसे तो सकल निध पूर्ण समुंदर विखै, हंस मरजीवा नेचै प्रसाद पावई। जैसे पर्वत हीरा मानक पारस सिद्ध, खनवारा खन जग विखै प्रगटावई। जैसे वन विखै मलियागर सौंदा कपूर, सोध कै सुभासी सुबास बैसावई। तैसे गुरबाणी विखै सकल पदार्थ है। बाणी विच सब कुछ पिया। बड़ी रहमत में विचार तो पहला तां बेनती कह रहे हैं, जेड़ी पावन बाणी सिद्ध गोष्ठ दी विचार चल रही है, ये बहुत गहरी ते ढूंगी। महाराज ने कहा तैसे गुरबाणी विखै सकल पदार्थ है, शरते जोई जोई खोजै सोई सोई निप जावे। जेड़ा जेड़ा इनू खोजेगा उन्होंने ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਅੰਤ खजाना लभेगा। आओ जो लड़ी बार सिद्ध गोष्ठ दी आप जी विचार श्रवण कर रहे हो। अज 7वां 8वां ते 9वां बंद पदा आप जी ने श्रवण किया है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ आप जी नू पता है। थोड़ी बेनती मैं आप जी नू आरंभता विच कह दिया। सिद्धा नाल हजूर ने चर्चा की थी। सिद्ध दे अर्थ वैसे भावें बेअंत किए गए, पर सिद्ध दा जे सीधा जे अर्थ पुगे हुए जोगी, गोष्ठ दा अर्थ चर्चा, जोगियां नाल विचार चर्चा। एक गल ध्यान विच रखियो, सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज ने इन्हां जोगियां नाल सुमेर पर्वत ते भी विचार की। इन्हां जोगियां नाल याद रहे सानू गोरख मता, जिन्हों नानक मता शब्द वरतने आ, उस पावन अस्थान ते भी विचार चर्चा की। ते याद रहे आपां बटाले दे लागे अचल छोटा जा नगर कह लो, उस पावन अस्थान ते भी विचार की। एक मालवे दे इलाके विच शायद आप नूं ध्यान होवे, भरतरी जोगी दे नाल महाराज ने पिंड तख्तूपुरे भी विचार की थी। तख्तूपुरा वैसे मोगे जिले विच पैंदा पंजाब दी धरती ते मालवा इलाका, इत्थे भी भरतरी जोगी दे नाल साहब ने विचार चर्चा की थी। कई थावां ते हजूर ने इन्हां नाल गोष्ठी की थी। ते याद रखो, मैं कुछ बेनतियां आरंभता विच कह दियां। पहलो पहल ते साहब नूं ये बालक शब्द भी वरत दे रहे। भाई गुरदास जी नूं जे आपां पढ़ीए, उन्हां शब्द भी वरते। चलो साहब नूं इन्हां अपने मत विच लैके आउण दा यतन कीता। भाई साहब ने शब्द वरत्या, सिद्धि मने विचारिया किवें दर्शन ए लेवै बाला। इत्थे बालक शब्द वरत्या। भाई साहब नूं पढ़ोगे तो बाद में जदों इन्हां नूं समझ आ गई, जदों पता लगता है ना भी साडा वस कोई नहीं चलता, बाद विच ये गुरु नानक साहब शब्द वरतदे ने, नानक शब्द वरतदे ने। पहला क्या कह लगे, सिद्धि मने विचारिया किवें दर्शन ए लेवै बाला। किवें साडे दर्शन दा अर्थ साडे मत नूं धारण करे। सिद्धि मने विचारिया किवें दर्शन ए लेवै बाला। ऐसा जोगी कली में हमरे पंथ करे उजियाला। जे साडे मत विच आ जाए ते सानू पता है कि साडे पंथ नूं साडे मत नूं एक कलयुग दे विच बड़ा प्रचलित कर देगा। ऐसा जोगी कली में हमरे पंथ करे उजियाला। ते भाई गुरदास जी ने कहा, पहला थोड़ी वाली गलबात ते बाद विच सिद्धा ने मन विच ख्याल बनाया भी क्यों ना कोई करामात नाल साहब नूं भरमा लईए। उन्हां दसना चाहे अपने भाने भी असी केवल गल्लां दे सिद्ध नहीं, असी करामात भी करने। ते भाई साहब जी दे बोल ने कह लगे, खप्पर दिता नाथ जी पानी पर लैवन, उठ चाला। महाराज जी ने एक खप्पर भांडा दिता, कह लगे थोड़ी दूर ते जाके पानी दा झरना वगदा है, उस पहाड़ दे लागे पानी लैके आओ। महाराज जी गए। भाई साहब दे बोल ने, खप्पर दिता नाथ जी पानी पर लैवन, उठ चाला। बाबा आया पानिया जिठै रतन जवेहर लाला। पर उथे आए ते की तकिया भी पानी दी थां ते सिद्धा ने अपनी करामात नाल, उन्हां अपनी अजमत करामात नाल उथे कई तरह के रतन जवेर लाल पैदा कर दिते। बाबा आया पानी है जिठे रतन जवेहर लाला। ते अगे भाई गुरदास जी ने एक तुक वरती, कह लगे
सतगुर अगम अगाध पुरख केड़ा चले गुरु दी चाला। हुण गुरु बड़ा अगम अगाध बोध है, बड़ा बेअंते। महाराज कहन लगे भाई गुरदास ने क्या गुरु दी चाला केड़ा चल सकदा है, गुरु दी बड़ियाई बेअंते। शब्द अगे बरते कहन लगे बाबा आया गुरुनाथ जी पानी ठौड़ नहीं उस ताला। महाराज ने क्या उत्थे पानी नहीं, ते सीधा क्या तुसी गए कुछ वेख्या नहीं। महाराज कहन लगे मैं लैन पानी गया सा, मैनू पानी तक मतलब सी, पानी उत्थे है ही नहीं सी। सिद्ध सोचते सन भी साड़ी करामात नाल बनाए, उत्थे रतन जवेहर तक के शायद किते गुरु नानक साहब की सुरत भरमा जाए। कहन लगे बाबा आया गुरुनाथ जी, शब्द वरते पानी ठौड़ नहीं उस ताला। ते अगले बोलने कहन लगे शब्द जिती सिद्ध मंडली। इत्थे फिर साहब ने सिद्धां दी मंडली नू शब्द दी विचार नाल शब्द जिती सिद्ध मंडली की तोस अपना पंथ निराला, ते अपने निराले पंथ विच उन्हां नू महाराज ने सीधे राह नू पाया। शब्द कीती सिद्ध मंडली की तोस अपना पंथ निराला, नानक कलयुग नानक नाम सुखाला। कहन लगे गुरु नानक साहब महाराज ने उन्हां सिद्धां नू करामात विचों बाहर कढ के ते नाम नाल जोड़िया। भाई गुरदास जी ने शब्द वरते। मैं फिर बेनती कमा एक शब्द उन्हां दा आपां होर लईए। भाई साहब ने फिर दूसरा शब्द ये वरतिया। कहन लगे जदों साहब ने विचार चर्चा की बाबे की सिद्ध गोष्ठ शब्द शांत सिद्धां विच आई। जदों बाबे ने सिद्ध गोष्ठ की ते शब्द की टेक नाल उन्हां जोगियां दे अंदर शांत टिका आ गया। बाबे कीती सिद्ध गोष्ठ शब्द शांत सिद्धां विच आई। जिन मेला शिवरात दा खट दर्शन आदेश कराई, वो शिवरात्रि दा मेला जिहड़ा लग्या सी महाराज जी ने जित लिया ते सारे जोगी साहब दे चरनां विच आ गए। फिर उन्हां शब्द वरते। कहन लगे सिद्ध बोलन शुभ बचन धन नानक तेरी वड्डी कमाई। वैसे भाई गुरदास जी ने एक शब्द होर भी वरते हैं। आ जिहड़ी सिद्ध गोष्ठ की बाणी है बिल्कुल मैं ये तां कह रहा ये नाल ढुकमा शब्द है। एक था उन्हें कहा कहन लगे जदों सिद्धां दा अपना वस ना चलिया ना, करामाता विखाइयां, उन्हें अपने पंथ की गल की, कई कुछ किया ना वस चलिया, ते कहन लगे सिद्धां दे अंदर ईरखा ने जन्म ले लिया। शब्द यही वरतिया, ईरखा ने जन्म लिया। सारे पर्वत पहाड़ों तो थले उतर के साहब नाल विचार चर्चा करन आ गए। भाई साहब ने बोल वरते। कहन लगे खादी खुणस जुगीसरा गोष्ठ करन सबै उठ आई। खादी खुणस का अर्थ है उन्हें ईरखा खादी, अंदरों एक रोष जन्मिया उन्होंने अंदर। खादी खुणस जुगीसरा गोष्ठ करन सबै उठ आई। ते पुछे जोगी भंगरनाथ तो दुध विच क्यों कांजी पाई। भंगरनाथ इन्हां दागू ने क्या महाराज तुसी दुध विच कांजी क्यों पा दिते। वैसे कांजी शब्द भाई गुरदास ने एक थां होर भी वरतिया। कांजी दुध कसुद्ध होए फिटै साधो बनो जाई। ते कांजी दे आखरी अर्थ हुंदे ने खट्टा पदार्थ। एक दो चीज़ां मिला के जिमें दुध विच नींबू निचोड़ दिता जाए दुध फट जाता है। कांजी भी एक खट्टा पदार्थ है, जदों दुध विच पाया जाए तो दुध फट जाता है। महाराज जी ने कहा पुछे जोगी भंगरनाथ तो दुध विच क्यों कांजी पाई। कहन लगे तुसी क्यों ये काम किया। फिटिया चाटा दुध दा रिड़किया मक्खन हाथ ना आई। कहन लगे दुध दा चाटा फिट गया है, हुण साडे हाथ विच मक्खन नहीं आउंदा पिया। ये अर्थ मैं गां जाके थोड़ा क्लीयर करना है। ये गल की कह रहे ने। महाराज जी ने आख्या कहन लगे पेख उतार उदास दा वत क्यों संसारी रीत चलाई। इत्थे इहदा अर्थ स्पष्ट होएगा महाराज तुसी उदासियां वाला बाणा उतार के ते तुसी संसारी बाणा गृहस्थियां वाला क्यों पहनिया है। इहदा मतलब वो ये गल कह रहे ने महाराज जी असल विच जेड़ा तुसी उदासियां दा बाणा उतार के गृहस्थियां वाला बाणा पा लिया है, ये काम तुहाडा इस तरह का है जिवें दुध विच कांजी पा के दुध नूं फाड़ दिता गया है।
महाराज तुसी ठीक नहीं कीता। ते महाराज जी ने अगे एक गल कही, महाराज जी कह लगे नानक आखे भंगर नाथ तेरी माओ कुचजी आई। कह लगे भंगर नाथ तेरी मां ही कुचजी है। मां दा अर्थ इत्थे मत। महाराज जी ने कहा ओ भंगर नाथ तेनू ते मत ही कोई नहीं, असल विच तेरी माओ कुचजी आई। महाराज जी ने क्या होए अतीत गृहस्थ छड़, तू अतीत कहोने ते गृहस्थ नू त्याग दिता, फिर उन हो के कर मंगन जाई, फिर उन्हां गृहस्थियां दे घरां विच तू मंगन क्यों जाना है। महाराज कहने लगे जे गृहस्थी इन्ने माड़े ने, फिर होए अतीत गृहस्थ छड़, फिर उन हो के कर मंगन जाई। महाराज कहने लगे अन दिते कुछ हाथ ना आई। मैं बेनती कह रहा है भाई गुरदास जी के बचनों के मुताबिक सिद्धा ने महाराज नाल पहला कई तरह की वार्तालाप की थी। इन्हां अपने मत दीयां गल्लां दसियां, करामात विखाई, भरमाउण दा यतन किया, इथों तक इन्हां अंदर ईरखां दा रोष पैदा होया। पर जदों साहब दे नाल बह के विचार की, इन्हां दे अंदर नूं गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह ने शब्द दी टेक नाल जोड़ के ते पेक तो उच्चियां चक के इन्हां अंदर नूं टिका बख्श दिता। अज आप जी जिहड़ा बचन पढ़े है आप भाई साहब जी हुणां ने, सतवां जिहड़ा पदा आरंभ हुंदा है, इहदे आरंभता दे बोल ने कह लगे हाटी बाटी रहे निराले रूख बिरख उद्याने। एक एक शब्द दे आखिरी अर्थ नूं सुनियो। हाटी दा अर्थ मंडी, मेला जां दुकान। वैसे हाटी शब्द हट्टी तो बने हैं, हट्टी तो शब्द हाटी। कई विद्वाना इहदा अर्थ कान सिंह नाभा जी ने किया घर भी, हाटी का अर्थ घर भी किया उन्होंने। कह लगे हाटी, हाटी का अर्थ फिर ध्यान विच करियो, मंडी दुकान जां मेला। बाटी, बाटी जिहड़ा शब्द है यह बनिया वैसे बाट तो रस्ते तो, इत्थे दा अर्थ भी रस्ता है, बाट है मार्ग है। वैसे बाटी दे अर्थ पढ़ो ते चपेतला भांडा, चौड़ा भांडा उन्होंने भी बाटी कहा जाता है। ग्वालियर के इलाके में कुछ लोग ने जेड़े आटे विच लूण पा के ते दुध नाल आटे नूं गुन के तपश वाली धरती ते रोटी पकाउंदे ने, उन्होंने भी बाटी शब्द वरतदे ने। इत्थे बाटी दा अर्थ रस्ता। उन्हां जोगियां क्या कहन लगे महाराज हाटी बाटी रहे निराले, निराले दा अर्थ वखरा। महाराज नूं कहन लगे लोहारी पा जोगी कह रहे हैं, कहन लगे महाराज असी इन्हां दुकानां तो, संसार दीयां मंडियां तो, संसार दे मेलियां तो, घरां तो ते संसारी रस्तियां तो वखरे रहने हैं। किथे रहने हैं? कहन लगे रूख बिरख उद्याने। उद्याने दा अर्थ है जंगल, रूख दा अर्थ रुख, बिरख दा अर्थ कई पौधे कर दिता, पर बिल्कुल मिलते जुलते शब्द ने। असी रुखां दे थले, बिरखां दे थले, जंगलों में रहने हाँ। तो पहली तुक दे अर्थ ने हाटी बाटी रहे निराले रूख बिरख उद्याने। महाराज असी संसार दियां दुकानां, संसार दे मेलियां, संसारी घरां नूं त्याग के, संसारी रस्तियां नूं त्याग के असी बिल्कुल जंगल विच रुखां ते बिरखां दे थले रहने हाँ। ये महाराज जी नूं कह रहे जी लोहार पा जोगी। अगली बचन वो आपने वरतदा है। महाराज नूं कहन लग्या कंद मूल आहारो खाइए औदू बोले ज्ञानी। कंद दा आखिरी अर्थ हुंदा है जेड़े खाण वाले पदार्थ धरती विच पैदा हुंदे ने। धरती विच जिवें गाजरां ने, मूलियां ने, शलगम ने। साचे दा अर्थ बिल्कुल कंद दा अर्थ धरती विच जेड़े गाजरां मूलियां शलगम इस तरह के पदार्थ पैदा हुंदे ने। कंद मूल दा अर्थ इत्थे मूली। कह लगे असी कंद मूल आहारो, आहारो दा अर्थ भोजन खुराक खाइए महाराज। जिथे असी जंगलों में रहने आ, रुखां बिरखां दे थले, उथे असी नाल नाल असी संसारी चस्कियां विच नहीं पए। असी ते केवल
धरती के थले गाजरा मूलियां शलगम इस तरह के जोड़े पदार्थ पैदा होंगे ने, इन्हों खा के ये खुराक खा के ही अपना गुजारा करते हैं। कंद मूल आहारो खाइए औदू बोले ज्ञाने, औदू का अर्थ विरक्त जोगी। बोले ज्ञाने कह लगे सानू ते साडे घर विच जिहड़ी जोग विधि है, ज्ञान है जिहड़ा सानू मिलिया, असी ते इसे ज्ञान नू मनदे हां, जां इसे ज्ञान नू ही असी धारण कीता है। कंद मूल आहारो खाइए औदू बोले ज्ञाने। उन्हें अगले जिहड़े शब्द वरते महाराज नू, कह लगे महाराज अगला काम असी करदे तीर्थ नहाइए सुख फल पाइए। तीर्थां ते इशनान करदे हां ते बस सानू इसे विचों सुख मिलता पिया। तीर्थ नहाइए सुख फल पाइए ते महाराज मैल ना लागे काई, सानू कोई मैल नहीं लगती। मैं बेनती इत्थे एक कह दिया जरूर, गुरमुखो ये सिद्धां दा सवाल है महाराज नू, वो महाराज ना चर्चा कर रहे ने, पर मैनू याद है मैं जरूरी कह दिया। कई बारी बाणी दी एक टोक लैके असी उहदा अर्थ स्पष्ट नहीं कर सकते। कई बारी दास ने तकिया एक बार कि बस ते तीर्थ यात्रा ते लोग तुरे, उन्हें एक बैनर लाया बस ते बाणी दी टोक लिख दी, तीर्थ नहाइए सुख पल पाइए मैल ना लागे काई, ते थले लिख दिता बचन गुरु नानक साहब जी का। उन्होंने मन का फुरने भी शायद गुरु ने गल की, पर नहीं, गुरु के सिखो सानू याद रखनी चाहिए। ते सिद्ध महाराज नू कह रहे ने साडा मत है, ये साडा मत है। महाराज जी नू कह लगे तीर्थ नहाइए सुख फल पाइए। महाराज तीर्थां ते इशनान करदे आ, इहदे विचों सानू सुख मिलता है। ते फिर कह लगे मैल ना लागे काई, महाराज सानू मैल नहीं व्यापदी। हुण अगला शब्द वरत्या, कह लगे गोरख पूत लोहा रीपा बोले। ये सारी गल कौन कह रहे हैं, केड़ी गल मैं दोहरा दिया। जिन्हें कहा भी असी मेलियां दुकाना संसार के घरां नूं त्याग के जंगलों रुखां बेलियां विच रहने आ, जिन्हें कहा सी कंद मूल आहारों खाने आ, जिन्हें कहा सी तीर्थां ते नहाउने आ ते सानू मैल नहीं लगदी। महाराज जी कह लगे गोरख पूत लोहा रीपा बोले। एक गोरख दा पुत्र कह लो या चेला कह लो, गोरख पूत लोहा रीपा बोले। गोरख दा चेला, गोरख दा पुत्र लोहा रीपा जोगी बोलदा पे है। महाराज जी नू कह रहा है जोग जुगत विद साई, कह लगे यही साडी जोग दी एक विधि है, जोग दा एक तरीका है, साई दे दर दी प्राप्ति दे साडे घर दा राह है। इत्थे सतवां बंद पूरा हो गया पदा। इहदे अर्थां नू फिर ध्यान विच रखियो। सिद्धा ने जोगियां ने महाराज जी नू कहा भी असी महाराज केवल संसारी मेलियां झमेलियां नू छड्ड के घरां बारां नू त्याग के जंगलों में रहने आ, कंद मूल खा के गुजारा करते हैं। तीर्थां ते नहाउणा साडा कर्म है ते सानू मैल नहीं व्यापदी। ये गल गोरख दा पुत्र जां गोरख दा चेला लोहारीपा साहब नू कह रहा है। हुण महाराज जी अपना जवाब देंगे। महाराज जी ने कहा, कहंदे हाटी बाटी नींद ना आवे। हाटी दा अर्थ ओही मेला मंडी दुकान संसार कर, बाटी रस्ता नींद ना आवे। महाराज कह लगे पर कर चित ना डुलाई। साहब कह लगे हो भले हो संसार त्यागन की लोड़ नहीं, दुनिया का मेला त्यागन की लोड़ नहीं। असल विच ज्ञान इस गल विच है कि संसार विच रहिंदियां इस घरां विच रहिंदियां हाटी बाटी नींद ना आवे, इहदे विच रह के तू आत्मिक तौर से सौ ना जाई। केवल तू संसारी धंधियां विच खचत ना हो जाए। मैनू बहुत सोहनी गल प्रोफैसर पूरन सिंह दी याद है। वो एक गल कहंदे सन, कहन लगे मेले विच बच्चा बाप नाल जांदा है ते बाप दी उन्हें उंगल पकड़ी है। जिन्ना समा बाप दी उंगल बच्चा पकड़ के रखदा है, मेला भी बच्चे नू सोहना लगदा है। सुनियो ध्यान नाल, जदों किते
वो बाप तो उंगल किते छुट जाए। अकाश के अंदर मेले अंदर पुरातन समय मेले लगने, मेले अंदर उंगल बाप दी छुट जाए ते बाप तो पुत्र विछड़ जाए। वही बच्चा जिन्हों मेला चंगा लगता सी, बच्चा रोंदा है करलाउंदा है, बाप तो विछड़ गया। ते प्रोफेसर पूरन सिंह ने कहा, वो कह लग्या संसार एक मेला तमाशा है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ गुरु नानक बाप दी उंगल पकड़ के रखी। जे गुरु नानक बाप दी उंगल पकड़ के रखेगा, याद रखी ये मेला भी तेरे लिए सुहावना ते चंगा है। जदों बाप दी उंगल छड़ दी, मेला भी तेरे लिए महाराज कहन लगे उजाड़ बन जाएगा। महाराज जी ने बाणी विच वैसे वचन ते कहे, मां भयान उद्यान नगर कर मान्या, चूड़ समगरी पेक सच कर जाने। ये सारे वचन उदों ही कह लगे जदों नाम विसरदे संसार जंगल रह गया। वैसे मैं एक बाणी विचों बेनती कह दिया, तुसी गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी पढ़ो। इसे संसार की जो गल चली, महाराज जी ने बाणी विच कहा, यह जग सच्चे की है, कोठड़ी सच्चे का विचवास। हुण बाणी ने कहा दी सच्चे का विचवास ते ये सच्चे की कोठड़ी है परमात्मा की। एक पासे बाणी ने कहा, महाराज जी कह लगे कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब, ये तो कूड़ है। एक पासे क्या सच्चे की कोठड़ी, एक पासे क्या संसार कूड़ है। बाणी विचों वचन पढ़ते हैं, महाराज कहने लगे ये विस संसार तुम देख दे, ये जड़ा संसार तक रहे ये जहर रूप है। विस दा अर्थ है जहर, पर नाल ही महाराज गुरु अमरदास जी ने कहा, ये विस संसार तुम देख दे, एहो हर का रूप है, ये हरि का सोहना रूप है। महाराज जी ने बाबा नामदेव जी ने क्या बाणी विच, हर का बागरा नाचे पिंदी में सागरा। की कारण, एक पासे विरोधी भाषा विच वचन ने, एक पासे हजूर कहते ने संसार कूड़ है, एक पासे महाराज ने क्या संसार सच्चे परमात्मा की कोठड़ी है, एक पासे क्या संसार जहर रूप है, ते दूजे पासे साहब ने आप ही कहा तो हरि का रूप है। असल विच महाराज ने एक गल कही, शब्द मेरा मैं संकेप कह दिया, जो पूरा शब्द पढ़ोगे ना आप जी, कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार कूड़ मंडप कूड़ माड़ी कूड़ बैसनहार कूड़ सोना कूड़ रूपा कूड़ पहननहार, पूरा शब्द पढ़ोगे ते अखीर ते तुक महाराज वरतदे ने, कह लगे नानक बखाने बेनती तुद बाज कूड़ो कूड़। तुद बाज कूड़ो कूड़ का अर्थ है, महाराज कह लगे संसार है ते सच्चे परमात्मा की कोठड़ी है ते हरि का रूप, पर जदों किते इहदे विचों परमात्मा तू भुल जाए, तू निकल जाए, उदों महाराज कह लगे ये उजाड़ बन जाता है। फिर बेनती नूं समझो, है ये हरि का परमात्मा का बनाया सोहना रूप, ये हर का बागरा है, पर जदों इहदे विचों परमात्मा तू भुल जाए, तेरा चेता विसर जाए, उदों बंदे लई साहब कह लगे केवल उजाड़ बन जाता है। मैं फिर बेनती वाले पासे आवां, महाराज जी ने कहा, कह लगे हाटी बाटी नींद ना आवे, पर घर चित ना डुलाई। कह लगे संसार माड़ा नहीं, इस संसार विच मेले विच मंडी दुकान विच रहिंदे आ, घर विच रहिंदे आ, साहब कह लगे याद रख तेनू गफल दी नींद ना आवे, सौ ना जाए केवल धंधियां विच। जिन्हों बाबे कबीर साहब ने कहा ना, कह लगे कबीर हर का सिमरन छाड़ के पालियो बहुत कुटुंब, धंधा करता रह गया भाई रहा ना बंद। वेखी किते हरि दा नाम छड़ दे, केवल परिवार नूं पालन विच पै जाए, धंधे विच खचत हो जाए, नाम भुल जाए, इन्हां विचों निवरना किसे ने नहीं। जिन्हों बाणी ने क्या चार गवाया हंड कै, चार गवाया सम, लेखा रब मंगेसिया तू आहो केरे, कम ए ना भुले तू हंड के चार ते जा किते चार सौ के बतीत ना करी। महाराज कह लगे रब दे दर जिस गल दा लेखा निबड़ना है, जिहड़ा काम करना है, तू उन्होंने जरूर ध्यान विच रखी। बाणी ने इनू बेअंत शब्द वरते, हाटी बाटी नींद ना आवे। महाराज कह लगे तेनू संसार विच रहिंदियां गफल दी नींद ना आए, सौ ना जाई केवल धंधे विच। बाबे कबीर साहब दे दो बोल सानू चेता रखने चाहिए ने। वैसे बचन बाबा नामदेव साहब ते भगत त्रिलोचन जी दे संबंध विच कहे, आप सुनते हैं, मैं संकेप कह दिया। जदों बाबा त्रिलोचन जी ने क्या नामा माया
मोया कह त्रिलोचन मीत, काहे छीपो छायला राम ना लावो चीत। तुसी रब नाल सुरत जोड़दे नहीं। ते एक ढंग दस्या बाबा नामदेव जी ने अगे, याद रखो ये बचन बाबे कबीर साहब जी दे ने, वार्तालाप बाबा त्रिलोचन जी ते भगत नामदेव जी दी दर्ज की थी। बाबे नामदेव ने क्या, नामा कह त्रिलोचना मुख ते राम संभाल, हाथ पांव कर काम सब। बाबे नामदेव ने क्या, मैं सुता नहीं, याद रख हाथ पांव कर काम सब चीत नरंजन नाल। कह लगे मैं हाथों पैरों नाल किरतकार करी जाने, असल बिच चित बिच मेरे मालको उदी याद उदा सिमरन है। इनू बाबे ने क्या, हाटी बाटी नींद ना आवे, धंधियां बिच कला खचत ना होवी नींद ना आए, पर कर चित ना डुलाई ते तू पराए घर विच अपने चित नू डोलन ना दई। पराए घर विच पर तन पर दारा पर हरी। महाराज ने कहा जिन्हें दो चीजों का त्याग किया, पराए धन का पराए तन का, ताके निकट वसै नर हरि रब उहदे नेड़े वसदा है। महाराज ने कहा हाटी बाटी नींद ना आवे, पर कर चित ना डुलाई। ते अगे क्या जोगियो, तुसी ते कहंदे हो भी असी जंगलां ते बिच रह के रुखा थले जां असी तीर्थां ते नहा के मन नूं मैल नहीं लगदी। असल बिच बिन नावे मन टेक ना टिकई, नानक भूख ना जाई। नाम तो बिना महाराज कहन लगे मन कदे टिका बिच आ ही नहीं सकता। बिन नावे मन टेक ना टिकई, नानक भूख ना जाई। भूख दा अर्थ है तृष्णा। महाराज कहन लगे नाम तो बिना अंदर दी तृष्णा कदे बुझदी नहीं। महाराज ने बाणी में दो शब्द वरते, कहन लगे तृष्णा बिरले ही की बुझी है, कोट जोरे लाख करोड़े मन ना हो रे, परै परै ही को लूझी है। पर नाल ही बाणी विच क्या कहन लगे, महाराज कहन लगे तृष्णा बुझे हर कै नाए, हरि दे नाम नाल अंदर दी तृष्णा मिटदी है। महाराज जी ने अगे क्या, हाट पटन कर गुरु दिखाया, सहजे सच व्यापारो। हाट पटन कर गुरु दिखाया, इथे हाट दा अर्थ है हट, पटन दा अर्थ है शहर, घर गुरु दिखाया, घर दा अर्थ इथे करांगे हिरदा। महाराज कहन लगे तू संसार विच रहिंदियां इन्हां दुकानां ते शहरां विच ना रहिंदियां एक गल चेता रखी, गुरु तेनू अंदर दे घर दी सूझ दिंदा है। हाट पटन कर गुरु दिखाया, जाए दे अर्थ इस ढंग नाल कर लवो कि अपने हिरदे घर नू तू गुरु दी दसी मर्यादा दे मुताबिक गुरु दे शब्द दी टेक लैके हिरदे घर नू शहर दा घर बना लै। हाट पटन कर गुरु दिखाया, सहजे सच व्यापारो। जदों गुरु दे दसे मार्ग ते तुरेगा, सचे वे तू संसार विच रहिंदियां धंधियां विच रहिंदियां अडोलता बिल्कुल सहज अवस्था विच रह के सच व्यापारो, तू सच दा व्यापार करना शुरू कर लेगा। वैसे बाणी ने कहा है, वंज करो बनजारे हो, बखर लेहो संभाल, तैसी बस्त विसाही है जैसी निभै नाल। महाराज ने कहा आप सारे व्यापारी हाँ, पर इत्थे व्यापारी बंदिया ओ वस्तु दा व्यापार कर जड़ी तेरे नाल निभे। महाराज जी केड़ी है, कह लगे वंज करो बनजारे हो, बखर लेहो संभाल, तैसी बस्त विसाही है जैसी निभै नाल। भाई रे राम कहो चित लाए, हर जस बखर लै चलो सौ देख है। पति आए तू अपने जीवन दे अंदर नाम धानू इकट्ठा करी, सौ पति परमात्मा देख के खुश हो जाएगा। महाराज ने क्या व्यापार करी, इथे क्या हट पटन कर गुरु दिखाया, सहजे सच व्यापारू। जोगियों नू महाराज जी ने क्या, जोगियों तुहाडे मन दा भरम है, जेड़ा गुरु की मत लै ले वो संसार विच रहिंदे आ गुरु दी दसी मत दे नाल अपने हिरदे घर विच एक इहो जिहा शहर पैदा करदा है जिथे बैठ के परमेश्वर दे नाम दे रस नू पींदा है। अगले बोल ने महाराज जी ने क्या, खंडत निंदरा अल्प आहारंग नानक तत विचारू। उन्हें अपना मत दसिया। महाराज जी ने क्या, मैं अपने तत की गल तुहानू दसां। तत की है, जिवें सियाणे पुरुष आप दी बैठे हो, कदी कदाई नौजवानों नू सियाणे पुरुष शब्द वरतदे ने, भलिया ये राह ना तुरी, ये राह माड़ा है,
साडे जिंदगी दे तत्त कढे ने। तत्त दा आखिरी अर्थ वैसे निचोड़ हुंदा है। महाराज जी ने क्या मैं तुहानू तत्त दी निचोड़ दी गल दसदा है। खंडत निंद्रा अल्प आहारंग, जेड़ा गुरु की मत लैके नाम नाल प्रीत जोड़दा है, खंडत दा अर्थ घट जांदी है, निंद्रा ओदी फिर नींद भी घट जांदी है। दोनों तरह की समय की सीमा, बाहरी नींद भी घट जाती है ते गफल की नींद विचों अंदर जिहड़ी कूक सुती नींद विचों ते उठ खलोंदा है, फिर वो सौंदा नहीं माया की नींद विच। मैं एक बेनती इत्थे चलदे कह दियां, डॉक्टर बलवीर सिंह ने एक पुस्तक लिखी है लम्मी नदर, उहदी आरंभता विच एक विशा है रवाब। गुरु ने नींद विचों किवें उठाया, वो जिहड़ा रवाब विशा है ना, मैं संक्षेप कह दिया। वो कहते ने, कहने लगे बगदाद की धरती ते धन गुरु नानक साहब जी गए। भाई गुरदास जी ने क्या फिर बाबा गया बगदाद नो, बाहर जाए किया अस्थाना, एक बाबा आकार रूप दूजा रबाबी मरदाना। पर उत्ते लिखते ने, कहने लगे गुरु नानक साहब जी दे बगदाद जान तो 1000 साल पहला बगदाद की धरती ते एक फकीर रहिंदा है, ਉਹਦਾ नाम है अबू नासर। अबू नासर वो गवंतरी है, वजंतरी है, रब दे प्यार विच भिजिया होया पुरुष है। ते कह लगे साज दा बड़ा मार, संगीत नाल प्यार करन वाले। डॉक्टर बलवीर सिंह कहंदे ने, कहन लगे एक अमीर बंदा बगदाद दा, वो चाहुंदा भी किते ए जिहड़ा अबू नासर है कदी मेरे घर विच चरण पाए, एक घर विच आए, मैं दी सेवा करा, रब नाल जुड़िया होया है। पर कह लगे अमीर बंदे तो किनारा रख दे अबू नासर। पर जदों किते अमीर बंदे नूं लोचना देखना, उन्हें किनारा कर जाना। एक दिन कह लगे जिहड़ा अमीर बंदा चाहुंदा सी ना मेरे घर विच आए, उस अमीर बंदे ने अपने घर विच कोई महफिल सजाई, कोई प्रोग्राम रखिया। अज अबू नासर फकीर बिन बुलाया उहदे घर चल गया। सुनियो, अगे बुलाउंदा सी, जांदा नहीं सी। अज उहदे अमीर बंदे घर महफिल सजी, बिन बुलाया उहदे घर गया ते इहदे बिल्कुल साध मुरादे कपड़े मैले कुचैले, इहदा लिबास वेख के महफिल दे लोकां ने पहलां ते दरबान नूं कहा, पहरेदार नूं इहनूं अंदर मंगते नूं आउण क्यों दिता है। अबू नासर फकीर नूं कहा, पहरेदार नूं कहा इहनूं अंदर क्यों आउण दिता है महफिल अंदर। बाद विच कहन लगे लोकां ने अबू नासर फकीर दा उस भले पुरुष दा मजाक उड़ाया। महफिल दे लोकां ने जदों तौहीन कीती, मजाक उड़ाया, ते कहन लगे उस फकीर ने ना अपनी बगल विचों एक साज कढ़िया। साज कढ़ के एक रब्बी प्यार विच भिज के तराना बजाया, राग आया। जेड़े लोग उहदा मजाक उड़ा रहे सन, राग दी आवाज सुन के, तराने नूं सुन के कह लगे वो लोग सारे जोर दी हसन लग पे। उन्हां दे चेहरे ते महफिल दे लोकां ते खुशी आ गई, लोग हसदे पे सन। ते जदों उन्हें फिर पर्दा बदलिया, तराना बदलिया, महफिल दे लोग रोन लग पे ओदी तराने दी आवाज नूं सुन के। पहला हसे, फिर परत के रोए, ते जदों रो रहे सन ते कह लगे उस फकीर ने फिर तराना पर्दा बदलिया। जेड़े रो रहे सन वो लोग महफिल दे कूक सौ गए, नींद आ गई उस राग दी आवाज सुन के। ते डॉक्टर बलवीर सिंह इन्नी गल कह के अगली जिहड़ी गल कहंदे ने, कह लगे बगदाद दी धरती ते अबू नासर फकीर 1000 साल पहला गया है। उन्हें लोकां नूं हसाया, रुआया ते परत के सौ गए। ते अबू नासर फकीर ने तुरन लगे ने शब्द लिखे, कह लगे ऐ अमीर बंदे, तेरे घर अबू नासर फकीर आया, तुमने उसकी हंसी उड़ाई। उते शब्द हिंदी दे बरते गए ने, तुमको हसाया, रुआया और परत के सुला के चला गया। तुहानू हसाया, रुआया, महफिल दे लोकां नूं सुला के चल गया। ते डॉक्टर बलवीर सिंह ने कहा एक फकीर आया, उन्हें लोकां नूं हसाया, रुआया ते सुआ के चल गया। जिस दिन गुरु नानक साहब जी ते बाबा मरदाना साहब गए, बाबे मरदाने ने रवाब बजाई, गुरु ने शब्द गाया,
ते कह लगे सदियां तो कूक नींद विच सुते हुए लोग जिन्होंने आपे दी समझ नहीं सी, गुरु नानक साहब ने उन्होंने अंदरों सुते लोगों को जगा के परमेश्वर नाल जोड़ दिता। गल इत्थे लैके आंदी, कह लगे जिहड़े सदियां दे सुते लोग माया दी नींद विच गुरु नानक साहब ने उन्होंने उठाया। मैं बेनती कह रही है इत्थे महाराज जी ने क्या कह लगे, सिद्धो जोगियो खंडत निंद्रा अल्प आहारंग नानक तत् विचारो। जदों कोई शब्द की टेक लैके हिरदे विच नाम नूं वसाउंदा है उहदी नींद घट जाती है, अंदरों जागदा है, वो फिर बाहरी नींद भी घटा दिंदा है, फिर अमृत वेला भी सामदा है। फिर ये नहीं भी कबीर सूता क्या करे उठ के न जपै मुरार, एक दिन सोवन होए गो लांबे गोड़ पसार। जिन्हों बाबे ने क्या सुता रहना कदी नाम नहीं जपदा भलिया, वो इस नींद विचों उठा के फिर अमृत वेले नूं सामदा है। नानक तत् विचारो, महाराज ने जवाब दिंदा कि तत् है। संक्षेप दे अर्थ अगले भी सुन लवो, नौवां पदा है। हुण जोगी अगली गल कहणगे महाराज नूं, कह लगे दर्शन भेख करो जोगिंदरा मुंदरा झोली खिंथा। दर्शन का अर्थ इत्थे मत, दर्शन भेख करो जोगिंदरा। जोगी राज जोगियां ने क्या महाराज तुसी काम कर्म करो, एक साडे वाला मत धारण कर लो ते करो की। कह लगे मुंदरा झोली खिंथा, मुंदरा पहनो कन विच, झोली पहनो ते खिंथा गोदरी अपने ऊपर एक धारण कर लो। गोदरी दे वैसे आखरी अर्थ हुंदे ने लीरा कच्चियां करके जिन्होंने वैसे मैं ठेठ शब्द वरत दिया ते नंगंद देना। नंगंद देना की है, सूई धागा लैके नंगंद देना, सौं देना। इनू वक्रे वक्रे लीरा लैके उन्होंने जोड़ के विच रूह भर के एक गोदरी तैयार की जाती है, जोगी रखते सन। महाराज जी ने कहा दर्शन भेख करो जोगिंदरा, महाराज तुसी साडे वाला मत धारण करो। मुंदरा झोली खिंथा, कन्ना विच मुंदा पाओ, झोली पहनो ते खिंथा गोदरी पहनो। ते अगली गल की कह लगे, महाराज नूं कह रहे ने जोगी 12 अंतर एक सरेवो घट दर्शन एक पंथा। थोड़ा जा अर्थ इत्थे ध्यान नाल सुनियो। 12 अंतर एक सरेवो, 12.5 मत ने, उन्हां विचों एक मत आई पंथ धारण कर लो। वैसे 12 केड़े ने? इन्हां दे जी 12 पंथ ने जी, जिन्हां विचों रावल पंथ, हेठ पंथ, पाव पंथ, कंतरी पंथ, गम्मे पंथ। इन्हां विचों गिनती करोगे गोपाल पंथ, पागल पंथ, बन पंथ, तवज पंथ। इन्हां विचों चोली पंथ ते दास पंथ, ये 12 ने जी आई पंथ। पर इन्हां विचों आई पंथ नूं ये उत्तम मनदे ने। फिर बेनती नूं सुनियो, महाराज जी नूं कह लगे 12 अंतर एक सरेवो, 12 पंथां विचों साडा एक पंथ आई मत, जिन्हों सारियां विचों 12 विचों उत्तम मनदे ने, तुसी धारण करो। घट दर्शन एक पंथा, घट दा अर्थ 6, दर्शन ये 6 भेखां विचों एक उत्तम पंथ दा एक फिरका है। इनू थोड़ा जा फिर ध्यान नाल सुनियो। 6 इन्हां दे भेख ने जी, सारे 6 मत कह लो, जिन्हां विचों आपां सुनदे आ जोगी, जंगम ते जैनी, सन्यासी, बैरागी ते वैष्णु। ये 6 ने। 6 विचों कह लगे साडा जोगी पंथ उत्तम है। ते जोगियां जोगी दे गा 12 फिरके ने। मैं अर्ज किया आप जी नूं, रवाल, पाव, हेत, पागल, फिर इसे तरह गोपाल, कंतरी, आई, ये सारे पंथ, चोली, दास, तवज, बन पंथ, ये 12 ने। महाराज जी ने क्या 6 भेखां विचों जोगी भेख है। जोगी भेख दे 12 फिरके ने। तुसी कृपा करके 12 फिरकियां विचों आई पंथ धारण करो। महाराज जी ने कह लगे दर्शन भेख करो जोगिंदरा, मुंदरा झोली किंता, 12 अंतर एक सरेवो, खट दर्शन एक पंथा। इन विद मन समझाइए पुरखा बहुड़ चोट ना खाइए। कह लगे साडा मत ते ये कहंदा है जेड़ा 6 भेखां विचों जोगी भेख, जोगी विचों आई पंथ नूं धारण कर ले। इन विद मन समझाइए पुरखा, मुंदरा पहन ले झोली ते खिंथा गोदरी धारण कर ले।
ਉਹਦਾ ਮਨ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਟਿਕਾਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦਾ ਮਨ ਇਨ ਬਦ ਮਨ ਸਮਝਾਈਐ ਪੁਰਖਾ ਬਹੁੜ ਚੋਟ ਨਾ ਖਾਈਐ, ਤੇ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਚੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਸਹਾਰਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਭੜਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਕੋ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਖੀਰ ਤੇ 9ਵੇਂ ਪਦੇ ਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾਨਕ ਬੋਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬੂਝੈ ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਇਵ ਪਈਐ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾਨਕ ਬੋਲੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬੂਝੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਮਨ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੋਗੀ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੰਦਰਾ ਪਾ ਲੋ, ਖਿੰਥੜਾ ਝੋਲੀ ਪਾ ਲੋ, 12 ਫਿਰਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਫਿਰਕਾ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੋ, ਨਹੀਂ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਮਨ ਉਹਦੀ ਸਮਝਦਾ। ਨਾਨਕ ਬੋਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬੂਝੈ ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਇਵ ਪਾਈਐ। ਜੋਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਮਿਲਾਪ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਵਾਂ, ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਜੋਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਿਲਾਪ, ਜੋਗੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋਗ ਜੁਗਤ, ਜੁਗਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਤਰੀਕਾ, ਇਵ ਪਾਈਐ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਕਰਨੇ, ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਸੁਰਤ ਨਾ ਸਿੱਧ ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਜੇ ਸੋ ਚੰਦਾ ਉਗਵੇ ਸੂਰਜ ਚੜੇ ਹਜ਼ਾਰ, ਇਹ ਤੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅੰਧਕਾਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੋਗੀਓ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭੇਖ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਭੇਖ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਦਿਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੋਗ ਨਾ ਖਿੰਥਾ ਜੋਗ ਨਾ ਡੰਡਾ ਜੋਗ ਨਾ ਭਸਮ ਚੜਾਈਐ, ਜੋਗ ਨਾ ਮੁੰਡਾ ਮੂੰਡ ਮੰਡਾਈਐ, ਜੋਗ ਨਾ ਸਿੰਘੀ ਬਾਈਐ, ਅੰਜਨ ਮਾਹੇ ਨਰੰਜਨ ਰਹੀਐ, ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਇਵ ਪਾਈਐ, ਗੱਲੀ ਜੋਗ ਨਾ ਹੋਈ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰ ਸੰਸਰ ਜਾਣੇ, ਜੋਗੀ ਕਹੀ ਹੈ ਸੋਈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੋਗੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਜਾਣਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਰੱਬ ਤੇ ਅਕੀਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ 9 ਪਦੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਜਿਹੜਾ 10ਵਾਂ ਤੇ 11ਵਾਂ ਪਦ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਜੂਰ ਆਪ ਦੀ ਕਲ ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ, ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰ। ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ, ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ ਦੇਣੀਆਂ। ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।